سقوط حیدرآباد ماہ ستمبر 1948 کو یوم نجات کے طور پر منانے ریاست کی کئی ایک فرقہ پرست سیاسی جماعتوں اور تنظیموں نے مطالبہ کیا ہے۔ تاریخ سے عدم واقفیت کے باعث چند شرپسند عناصر آصف جاہی حکمرانوں کی غلط تصویر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سیکولر ذہن کے حامل کئی ایک شخصیتوں اور کتابی حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ آصف جاہی حکمرانوں نے کبھی مذہب کی دیوار کھڑی نہیں کی۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کو وہ اپنی دو آنکھیں قرار دیتے تھے۔ پیش ہے اس سلسلے میں روبی ڈی جی نیوز کی یہ خصوصی رپورٹ۔ ملک و ریاست میں جہاں عوام ہر دن ہونے والی مہنگائی سے پریشان ہے، وہیں جلسے جلوس اور مذہبی ریالیاں عام آدمی کی تشویش اور بے چینی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ حیدرآباد شہر میں اکثر و بیشتر شرپسند سیاسی جماعتیں اپنے ووٹ بینک کی خاطر کشیدگی پھیلانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ ایک جانب ریاست میں ڈیزل و گیس کی قیمتیں، تلنگانہ مسئلہ، فیس باز ادائیگی، برقی کٹوتی، سیاسی جماعتیں تبدیل کرنے والے قائدین اور مہنگائی کی فکر نے عام آدمی کا سکون برباد کر دیا ہے، تو دوسری جانب فرقہ پرست تنظیمیں تاریخ کو جھٹلا کر سیکولر ذہن رکھنے والے رحم دل حکمرانوں کے بارے میں غلط پروپیگنڈا پھیلا کر فرقہ پرستی اور نفرت کا بیج بو رہی ہیں۔ تاریخی شہر حیدرآباد کے امن و سکون کو برباد کرنے کے لیے اب ہر سال 17 ستمبر کو یوم نجات سرکاری طور پر منانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ تاریخ کی معلومات سے عدم واقفیت کے باعث ان فرقہ پرست جماعتوں اور تنظیموں کا کہنا ہے کہ 17 ستمبر 1948 کے دن عوام کو آصف جاہی حکمرانوں کی غلامی سے نجات ملی، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ حیدرآباد دکن پر لکھی گئی مختلف کتابوں کے حوالے سے اور 11 گورکھا رائفلز کے ریٹائر کیپٹن پانڈو رنگا ریڈی اور ایسوسیٹ پروفیسر بھانگیا بھوکیا کے علاوہ کئی سیکولر ذہن کے حامل شخصیتوں نے کہا کہ حضور نظام نواب میر عثمان علی خان اور دیگر آصف جاہی حکمرانوں کو عوام دشمن کہنے والے صرف اپنا سیاسی مفاد چاہتے ہیں۔ اور 17 سپٹمبر جو کچھ لوگ اسپیشلی پولیٹیکل پارٹی سیلیبریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جو ہم اس حیدرآباد سے لبریٹ ہو گئے، آج کے بارے میں سوچے تو ہم کون سا حیدرآباد میں جی رہے ہیں اور کیسا حیدرآباد میں جی رہے ہیں، اور ہمارا حیدرآبادیوں کا جو ہندو بھی ہے، مسلم بھی ہے، کرسچن بھی ہے، کیونکہ ہم لوگ سب حیدرآبادی تھے، حیدرآبادی ہے اور حیدرآباد بھی رہیں گے۔ یوم نجات کا مطالبہ کرنے والے شرپسند حضور نظام میر عثمان علی خان کی رعایا پروری، انسانیت نوازی، جذبہ خدمت خلق اور مثالی کردار سے واقف ہی نہیں ہے۔ جو نظام سے نفرت کرتے ہیں، در حقیقت وہ تاریخ کی سچائی سے نفرت کرتے ہیں۔ تاریخی شہر حیدرآباد کے چپے چپے پر ان رحم دل بادشاہوں اور حضور نظام میر عثمان علی خان کی نشانیاں آج بھی قائم ہیں، جس سے آج بھی عوام ہر طرح کا فائدہ اٹھاتی ہے۔ اسکول، کالجز و یونیورسٹیز کا قیام نظام کے دور حکومت میں آیا، جہاں آج نئی نسل تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ تالاب، تاریخی عمارات، پلوں کی تعمیر، کئی ایک صنعتیں، محکمہ جات، کتب خانے، یہ سب حضور نظام میر عثمان علی خان کی مرہون منت ہے۔ آج جب فیس باز ادائیگی کا مسئلہ ہے، آج جہاں کارپوریٹ تعلیمی اداروں میں تعلیم نہیں تجارت ہوتی ہے، مگر حضور نظام نے عثمانیہ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تاکہ سماج میں ہر کوئی تعلیم یافتہ ہو۔ رعایا کی دکھ تکالیف اور بیماری کے پیش نظر عثمانیہ دواخانہ تعمیر کیا گیا، جہاں نظام دور حکومت میں مریضوں کے بہتر علاج کے ساتھ ساتھ
मुफ्त खाना तक दिया जाता था। आज उस दवाखाने की क्या हालत है ये अवाम को बखूबी मालूम है। एंड सेकेंडली जो हॉस्पिटल जो है उस्मानिया हॉस्पिटल, फ्री फूड फॉर एवरीबॉडी, कॉमन फूड। हुजूर निजाम मीर उस्मान अली खान सेकुलरिज्म की बेहतरीन मिसाल थे और आज की अवाम निजाम दौरे हुकूमत से वाकिफ ही नहीं। 70 साला पांडु रंगाराव वो शख्सियत हैं जिनके सीने में निजाम दौरे हुकूमत की बेहतरीन यादें आज भी जिंदा हैं। चंद शरपसंद हुजूर निजाम मीर उस्मान अली खां को जालिम और जानिबदाराना हुक्मरान समझते हैं, लेकिन आसिफ जाही खानदानों के 7 हुक्मरानों में 2 हुक्मरानों मीर महबूब अली खान निजाम और मीर उस्मान अली खान निजाम को बहुत ज्यादा शोहरत और इज्जत नसीब हुई। मीर महबूब अली खान निजाम, जिन्हें महबूब अली पाशा भी कहा जाता है, उन्होंने सरोजनी नायडू को आला तालीम के लिए भी लंदन भिजवाया था और सरोजनी नायडू के तमाम तालीमी अखराजात हैदराबाद की हुकूमत के जिम्मे थे। Then one more thing, Mahbub Ali Pasha, his father, he sent Sarojini Naidu. आप सब लोग सुनेंगे सरोजिनी नायडू, एक ग्रेट पोएटेस, उसको राइट लंदन भेज के तुम आगे पढ़ो और पूरा पैसे जो कर्ज है गवर्नमेंट ऑफ हैदराबाद देंगे। एक हिंदू नटू एक औरत को पैसे दिए। यू कैन सी हाउ द स्टेट वाज सो प्रोग्रेसिव। और हिंदू मुस्लिम को कुछ नहीं था वहाँ। हुजूर निजाम मीर उस्मान अली खान ने अपने दौरे हुकूमत में कई मंदिरों, यहाँ तक के तिरुपति मंदिर और यादगिरी मंदिर तक को फंड्स मुख्तस किए, जो उनके सेकुलर होने का सबूत था। वो इतना रिलीजियस मैन थे। पर्सनली ही वाज अ मुस्लिम, बट आउटसाइड ही वाज अ ग्रेट सेकुलरिस्ट। तिरुपति टेम्पल को पैसे दिए, यादगिरी टेम्पल को पैसे दिए और जो आए सबको पैसे दिए। और ये ट्रेडिशन ऑफ वाट ने भद्राचलम को हर एक साल भद्राचलम पेल्स भेजना वो कंटिन्यू किए। देन हाउ कैन यू से दैट ही वाज व्हाट ए रिलीजियस बायकॉट? किताबी हवाले से ये बात भी पता चली है कि हाईकोर्ट की तामीर से कबल इंजीनियरों और मुशीरों ने हाईकोर्ट का नक्शा दिखाते हुए एक मंदिर की निशानदेही की और हुजूर निजाम को मशवरा दिया कि अगर ये मंदिर यहाँ से हटा दें तो हाईकोर्ट की खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा। इंजीनियरों और मुशीरों की बात सुनकर हुजूर निजाम ने जवाब दिया कि यहाँ जिस इमारत की संग बुनियाद रखी जा रही है और जो इमारत तामीर होने वाली है वो इंसाफ का घर है और इंसाफ के घर की तामीर के लिए मैं मंदिर को हटाकर नाइंसाफी करना नहीं चाहता। और फिर इस मंदिर को बिना हटाए और बिना तोड़े हाईकोर्ट की इमारत तामीर करवा दी। ये मंदिर आज भी हाईकोर्ट के मशरक़ी हिस्से में मौजूद है। हुजूर निजाम के दौरे हुकूमत में 5000 मुस्लिम इदारों के मुकाबले 11,355 हिंदू इदारों व दीगर इदारों को नकद माश मुकर्रर थी। हुजूर निजाम मीर उस्मान अली खान ने 100 साल पहले अपनी रियाया को जो मजहबी आज़ादी दी थी, इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। निजाम साहब के तामीरी कामों की तफसील के लिए वक्त भी कम पड़ जाएगा। 1935 से 1945 के दरमियान हैदराबाद में जितने लखपति लोग मौजूद थे, इतने लखपति उस दौर में लंदन और बर्लिन जैसे शहरों में मौजूद नहीं थे। 1948 तक हुजूर निजाम का शुमार दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर लोगों में हुआ करता था और इसीलिए आजादी के बाद हिंदुस्तानी हुकूमत रियासत हैदराबाद चाहती थी। रियासत हैदराबाद में खुश्क साली और कहत के पेश नज़र उस्मान सागर और हिमायत सागर की तामीर अमल में आई और उस वक्त हैदराबाद की जुमला आबादी 1 लाख थी, मगर हुजूर निजाम मीर उस्मान अली खां की दूरअंदेशी से उस्मान सागर और हिमायत सागर जैसे ज़ख़ीरे-आब 5 लाख की आबादी के लिए तामीर किए गए। पांडु रंगारेड्डी के मुताबिक इन ज़ख़ीरे-आब की तामीर के बाद भी हुजूर निजाम को अपनी रियाया की ही फिक्र थी। हिमायत सागर और उस्मान सागर जब बनते बाद हैदराबाद का पॉपुलेशन सिर्फ 1 लाख था और वो डिजाइन किए हैं 5 लाख के लिए। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थी, उस वक्त जब पानी होने के बाद निजाम सरकार को फैल गए, अभी पानी हम नला लगा रहे हैं, एक के पास चाराना लेंगे पर महीना बोल के फैल गए। निजाम सरकार वो लिखे हम आवाम को फ्री खाना देना है, मैं इतना इनकम्पिटेंट है, खाना नहीं देता हूँ, कम से कम तो पानी तो देना उनके लिए। हुजूर निजाम के कारनामे बयान करने के लिए यूं तो बहुत कुछ है, मगर यौम नजात का मुतालबा करने वालों को तारीख पढ़ने और तारीख को समझने की जरूरत है। आज दूसरी रियासतों का हवाला देकर सरकारी तौर पर यौम नजात का मुतालबा करने वाले शरपसंद सिर्फ और सिर्फ सियासी फायदा उठाना चाहते हैं।
अभी महाराष्ट्र में और एक एक्स मिनिस्टर फ्रॉम हैदराबाद से क्या बोल रहे हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं. महाराष्ट्र गवर्नमेंट कब सेलिब्रेट शुरू किया है? दैट इज ओनली 2001 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑर्डर दी है, ओनली 2001, उसको पहले नहीं किए. और कर्नाटका गवर्नमेंट ओनली 2009 बीजेपी गवर्नमेंट के होने के बाद उसको पहले नहीं किए. अब ये सेलिब्रेशन हो तो 1948 से 1956 तक तो हैदराबाद गवर्नमेंट है, एक दिन भी सेलिब्रेट नहीं किए, कोई पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं बोले, अभी क्यों आ रहे? और महाराष्ट्र में हो रहा बोलते ना, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के मतलब तेलंगाना स्टेशन 2000 में शुरू हुआ. ये तेलंगाना वाले फिर महाराष्ट्र का औरंगाबाद बीड़ परभनी वो हैदराबाद में आता बोल के वो डर के क्या बोला, नहीं तुम ये बना बोल के टू डाइवर्ट अटेंशन वो लोग किए. और कर्नाटक में किए 2009 में किया कर्नाटक, उसका पहले वो चीज नहीं किए. दैट्स व्हाई आई अपील टू ऑल द पीपल नॉट टू सेलिब्रेट दिस वन. हिस्ट्री में कुछ नहीं हुआ, और जो गलतियां सबसे हुआ, गलतियां होने के बाद इसी तरह सो मेनी रीजन उसको फिर आगे ये हुआ बोले तो एक गलत है. दिस इज इनकरेक्ट एंड हिस्टोरिकल अनट्रू. 1911 से 1948 तक मीर उस्मान अली खान ने हुक्मरानी की और 1948 से 1956 तक उन्हें राज प्रमुख बनाया गया. 1911 से 1948 तक 37 साल रियासत हैदराबाद पर हुकूमत करने वाले हुजूर निजाम ने सिर्फ और सिर्फ रियाया की खुशहाली को अवलीन तरजीह दी. न उनके दौर में मजहब की दीवार थी, न आपस के झगड़े. उस रहमदिल बादशाह ने हर किसी को मजहबी आजादी दी और हर मजहब का एहतराम किया. अगर निजाम दौरे हुकूमत से आज की सियासत का मुआवजा किया जाए तो आज मुल्क और रियासत बिलखुसूस हैदराबाद के हालात से सभी वाकिफ हैं, क्योंकि आज इख्तियार की हवस में तारीख की सच्चाई को गलत रंग देकर अपना सियासी मफाद हासिल करना सबका मंशा है. आज कई एक सियासी कायदीन हर तरह के स्कैम और घोटाले में शामिल है. करोड़ों अरबों रुपये स्विस बैंक में जमा करके हिंदुस्तान को तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया और अपने ऐबों को छुपाने के लिए उन रहमदिल और रियाया परवर बादशाहों पर उंगलियां उठा रहे हैं. सियासी कायदीन की गलत बातों में आकर नौजवान नस्ल जिस राह पर चलने लगी है या उन्हें गलत रास्तों पर चलाया जा रहा है, उन्हें तारीख के उन औराक को पलटने की जरूरत है ताकि वो खुद सच्चाई खुद जान सके. निजाम दौरे हुकूमत में ताउन प्लेग जैसी खतरनाक बीमारी पर हर तरह से काबू पाया गया और जो उस बीमारी से मुतासिर हुए उन्हें मीर उस्मान अली खान ने हर तरह से इमदाद की. मगर आज की हुकूमत और फिरका परस्त कायदीन जो मौसमी अमराज डेंगू बुखार पर भी काबू नहीं पा सकते, वो हुजूर निजाम की रियाया परवरी को क्या समझ सकते हैं. आज जिस असेंबली की इमारत में बैठकर सियासी हुक्मरान आवाम की खिदमत का फैसला करते हैं, ये असेंबली की इमारत भी हुजूर निजाम की ही तामीर करदा है. सिर्फ आसिफिया दौर ही ऐसा दौर गुजरा है जहां पर मजहब के हुकूक और मर्तबा और इज्जत का वैसा ही ख्याल रखा जाता था जैसे बादशाह वक्त का मजहब का अदब व एहतराम किया जाता. हर हुक्मरान इस बात का पाबंद था कि अपनी सल्तनत और रियाया पर अदल व इंसाफ और निहायत ही अच्छे तरीके से हुक्मरानी कर सके. आज एक दूसरे पर कीचड़ उछालने वाले और सियासी पार्टियां बदलने वाले फिरकापरस्त कायदीन अपने अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि कई 100 साल पहले तामीर की गई इमारतें और फलाही इक़दामात आज भी आवाम को फायदा पहुंचा रहे हैं. और आज़ादी के 66 साल बाद आज मुल्क और रियासत का क्या हाल है ये सभी जानते हैं. उसके डेवलपमेंट के बारे में सोचना है बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसका डेवलपमेंट पब्लिक पैसों से हुआ है. मगर उस्मान अली खान के अंदर उनके पीरियड में मॉडर्न डेवलपमेंट ऑफ हैदराबाद हुआ है. एविएशन या रेलवेज या वाटर वर्क्स या रोड वर्क्स या कुछ भी जो हुआ है, ये लास्ट निज़ाम के पीरियड में निज़ाम उस्मान अली खान साहब के टाइम में हुआ है. ये मालूम करना ज़रूरी है, क्योंकि आज के हैदराबाद को हम देखें तो ड्रेनेज सही नहीं है, रोड सही नहीं है. डेवलपमेंट क्या हुआ है इन 60 सालों में, ये सोचना ज़रूरी है. There is a pressure on the government, particularly by the right-wing Hindu forces, to celebrate September 17 as Liberation Day. But one should see whether it is really a Liberation Day. What happened after the 17 September 1948? It was just only a merger
in the Indian Union. After the fall down of the Nizam rule, the local dominant caste elites captured the political power. The common man's situation or condition remained same. So in true sense, there is no any kind of liberation in the region. The communal forces, the Hindu communal forces, are deliberately promoting this propaganda to celebrate 17th September just only to realize their political ends and political aims. There is no actually people's aspiration in this kind of celebration. बहरहाल रियासत हैदराबाद के हिंदुस्तान में जम होने को यौम नजात कहना बिल्कुल गलत है, और जो इस तरह के मुतालबात करते हैं उन्हें चाहिए कि तारीखी किताबों और दीगर हवालों से निज़ाम दौरे हुकूमत से और आजकल की हुकूमत का मुआजना करें, तो उन्हें इसमें फ़र्क खुद ब खुद मालूम हो जाएगा।